Hello my dear lovely students, welcome to the class. Students, in our today's class we are going to start a new chapter. बच्चों, आज हम अपनी क्लास में अपने सब्जेक्ट का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. See, take your page number 1919. See, it's your chapter number 3 and what's the name of the chapter? The Rhythm of Life. What's the name? The Rhythm of Life. So in this our today's lesson we will see the rhythm of life. Now what do you mean by rhythm? Rhythm means the tuning of life or you can say the flow of life. Rhythm का मतलब है कि अपने life का tuning क्या है. So in detail we will see in the lesson. So without wasting much of our time, come we will start our today's lesson, the rhythm of life. Put the palm of your right hand slightly on the left of your chest. You will feel a thumping inside. If you run or do exercise, you will feel a faster thumping in the quietness of night. You can hear the sound of thumping even. This is the sound of the pumping blood by your heart. Now, what is given here? Keep your right hand slightly on the left of your chest. Means अपना आपका जो right hand है वो slightly अपने chest के ऊपर रखिए. So what you will feel? You will feel the thumping means the beating of the heart. आप अपने हार्ट के ऊपर हाथ रखोगे तो आपको क्या फील होगा? हार्ट का बीट सुनाई देगा, है ना? आप फील करोगे ना, the heart is pumping. Yes. So in the quietness of the night means night में सब पूरा silent हो जाता है ना, एकदम quiet हो जाता है surrounding. So what you can hear? You can hear the sound of thumping of your heart. और रात में जब अपन ब्लैंकेट लेके लेट जाते हैं बेड पे, पूरा सुनसान रहता है ना, एकदम साइलेंट रहता है सब कुछ. तो वो टाइम पे आपको क्या सुनाई देता है? ओनली द साउंड यू कैन हियर इज थम्पिंग साउंड. मतलब अपने हार्ट का थम्पिंग बीट अपने को सुनाई देता है. सो दिस साउंड इज ऑफ द पंपिंग ब्लड ऑफ योर हार्ट. आपके हार्ट में जो ब्लड पंप होता है ना, ये उसकी आवाज होती है. It contracts and expands to perform pumping. The heart pumps blood about 72 times per minute. Now, it contracts and expands to perform pumping. आपका जो हार्ट है वो पंप करता है. क्या पंप करता है? ब्लड 72 टाइम्स पर मिनट. मतलब 1 मिनट में अपना हार्ट 72 टाइम्स पंप करता है. जस्ट इमेजिन, 1 मिनट में अपना हार्ट कितने बार पंप करेगा? 72 टाइम्स पर मिनट. मतलब 72 टाइम्स अपना हार्ट पंप करता है. The regular repeated pattern in the pumping of blood is called the rhythm of life. Underline this. The regular repeated pattern in the pumping of blood is called rhythm of life. I can ask this question, what do you mean by rhythm of life? Or what is rhythm of life? So, what is the answer? The regular repeated pattern in the pumping of blood is called the rhythm of life. मतलब the regular repeated pattern मतलब जो पैटर्न है 72 टाइम्स बीट करने का, वो पैटर्न क्या है? पंपिंग ऑफ ब्लड है. ठीक है, और ये पंपिंग ऑफ ब्लड को हम क्या बोलेंगे? रिदम ऑफ लाइफ. सी, क्या कांट यू इमेजिन 72 टाइम्स पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 72 टाइम्स अपना हार्ट पंप करता है. The blood reaches to every cell of the body through many tubes, broad and narrow. These tubes are called blood vessels. Now, underline this also, that the blood reaches to every cell of the body through many tubes, broad and narrow. These tubes are called blood vessels. Means in our body, as you know that many cells are there. हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं. ठीक है, जो सेल्स के हेल्प से अपने पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है. सर्कुलेट होता है मतलब ब्लड फ्लो होता है. अपने पूरी बॉडी में अगर ब्लड फ्लो नहीं होगा
तो हम कैसे जिएंगे, है ना। और ब्लड फ्लो कैसे होगा, थ्रू ब्लड वेसल्स। कैसे होगा, ब्लड वेसल्स से। और ब्लड वेसल्स में क्या होता है, मैनी ब्रॉड और नैरो ट्यूब्स यानी कि सेल्स होती है, उसके हेल्प से पूरे बॉडी में ब्लड फ्लो होता है। ब्लड वेसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। नाउ ब्लड वेसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। ब्लड वेसल्स 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज आर्टरीज, सेकेंड इज वेन्स एंड थर्ड इज कैपिलरीज। आपने अपने साइंस सब्जेक्ट में पढ़ा होगा ब्लड वेसल्स के बारे में कि ब्लड वेसल्स 3 टाइप के होते हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज सप्लाई द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आर्टरीज। आर्टरीज का क्या फंक्शन है कि आर्टरीज पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है फ्रॉम हार्ट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मतलब आर्टरीज जो है हार्ट से लेके पूरी बॉडी में क्या सप्लाई करता है, ब्लड सप्लाई करता है। ये काम किसका है, आर्टरीज का। नाउ सेकेंड इज वेन्स। Veins receive the blood from all those body parts and bring it back to the heart. Now what is the work of veins? Veins receive the blood from all those body parts and bring it back to the heart. मतलब वेन्स क्या करता है, पूरे ब्लड को, अपने पूरी बॉडी पार्ट्स में जो ब्लड होता है ना, वो ब्लड को वापस ले लेता है और कहाँ पहुँचाता है, हार्ट में। ठीक है, ये किसका काम है, ये वेन्स का काम है। क्लियर। अभी हमने आर्टरीज का वर्क देख लिया, वेन्स का वर्क देख लिया। नाउ वी विल सी द वर्क ऑफ कैपिलरीज। व्हाट वर्क डज कैपिलरी परफॉर्म इन आवर बॉडी। कैपिलरीज आर स्मॉल फाइन टाइनी वेसल्स। नाउ व्हाट आर कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या है, कैपिलरीज आर स्मॉल फाइन टाइनी वेसल्स। आर्टरीज एंड वेन्स ब्रांच आउट इनटू thinner tubes to form capillaries. Now arteries and veins, arteries और veins क्या है, branches है, किसके, branch out into thinner tubes to form capillaries। मतलब arteries और veins क्या काम करते हैं, एकदम thinner मतलब छोटे ये फॉर्म करते हैं, ट्यूब्स फॉर्म करते हैं। क्यों फॉर्म करते हैं, क्योंकि वो उनको कैपिलरीज बनना रहता है। क्लियर। नाउ आर्टरीज लाई अ लिटिल डीपर अंडर द स्किन, दे आर नॉट easily seen. Veins are located just below the skin and can easily be seen and greenish blue lines. Now arteries क्या है, arteries कहाँ रहती है, arteries lie in the deeper under the skins. आर्टरीज अपने बॉडी में स्किन के बहुत ही गहराई में, मीन्स बहुत ही अंदर रहती है। कौन, आर्टरीज। ठीक है, अब आर्टरीज तो एकदम गहराई में, एकदम अंदर रहती है अपनी बॉडी में। बट वेन्स कहाँ लोकेट करती है, वेन्स आर लोकेटेड जस्ट बिलो द स्किन। वेन्स हमारे स्किन के अंदर में ही, जस्ट अंदर में ही रहती है। एंड कैन बी सीन ईजिली एज ग्रीनिश ब्लू लाइन्स। वो इजीली सीन हो सकती है, मतलब आपकी हाथ की अगर आपको नस दिखे, है ना, अपन हाथ मुट्ठी ऐसा बंद करते हैं तो अपने हाथ में आपको नस दिखती है ना, ग्रीन और ब्लू कलर की, यस, उसी नस को बोलते हैं वेन्स। और वो बहुत ही इजीली दिख जाती है क्योंकि वो एकदम स्किन के जस्ट नीचे ही लोकेट रहती है। ठीक है, ग्रीनिश और ब्लू लाइन्स में। नाउ ब्लड इज अ थिक फ्लूइड. It consists of 2 parts, plasma and corpuscles. Now corpuscles are of 3 types, red cell, white cell and platelets. अब आप सबको पता है कि ब्लड एकदम थिक होता है। ब्लड थिक मतलब ब्लड एकदम गाढ़ा लिक्विड होता है ना। आपको अगर बाय चांस चोट लग गई और वहाँ से आपको ब्लड निकल रहा है ना, इंजरी हो गई है, तो आप देखते हो ना ब्लड कितना थिक होता है। किसी का ब्लड थिक होता है, किसी का थिन होता है ना। सो ब्लड में कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स। देयर आर 2 पार्ट्स इन द ब्लड. फर्स्ट इज प्लाज्मा एंड सेकंड इज कॉर्प्यूसल्स. ब्लड में 2 पार्ट्स होते हैं, है ना,
रिमेंबर दिस थिंग्स, आई कैन आस्क दिस थिंग्स इन योर ओरल एग्जाम। ब्लड में कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज प्लाज्मा एंड सेकेंड इज कॉर्प्यूसल्स। ना क्लियर? Now blood has 2 parts, plasma and corpuscle, and corpuscle are of 3 types. देखिए कंफ्यूज मत होइए, ब्लड 2 टाइप के हैं, प्लाज्मा और कॉर्प्यूसल। और कॉर्प्यूसल्स के 3 पार्ट होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, रेड सेल, वाइट सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ये किसके हैं? कॉर्प्यूसल के, रेड सेल, वाइट सेल एंड प्लेटलेट्स। Now the plasma is the fluid part of the blood. It has many different types of cells to perform different functions. It also helps clotting of blood. Now we have seen the 3 parts of corpuscle. Corpuscle के 3 parts हमने देख लिए, कौन से? फर्स्ट इज रेड सेल, सेकंड इज वाइट सेल एंड थर्ड इज प्लेटलेट्स। ये है कॉर्प्यूसल के। अगर कॉर्प्यूसल के ये है तो प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा इज अ फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड। प्लाज्मा एक फ्लूइड पार्ट है। फ्लूइड मीन्स एक टाइप का लिक्विड पार्ट है ब्लड का, ठीक है। अब आजकल आप न्यूज़ में देख रहे होंगे, जो दिल्ली के जो है सीएम, क्या नाम है? केजरीवाल। यस, केजरीवाल ने प्लाज्मा थेरेपी निकाला था इन कोरोना के इसके लिए, ट्रीटमेंट के लिए, है ना। तो वो प्लाज्मा थेरेपी में अपनों को क्या मिलेगा? तो प्लाज्मा थेरेपी इज इन फ्लूइड पार्ट। फ्लूइड पार्ट में होता है प्लाज्मा थेरेपी। फ्लूइड पार्ट मतलब एक ही लिक्विड पार्ट में। अब वो लिक्विड पार्ट कहाँ मिलेगा आपको? ब्लड में। द प्लाज्मा इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड। तो प्लाज्मा का जो फ्लूइड पार्ट है हमको ब्लड में मिलेगा। It has many different types of cells to perform different functions. It also helps clotting of blood. अब प्लाज्मा के ब्लड में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं जो हमें अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हेल्प करते हैं। क्लियर? There are billions of red blood cells in human body. Red blood cells carry oxygen. It has a red pigment hemoglobin which absorbs oxygen. Now there are billions of red blood cells in human body. ह्यूमन बॉडी में बहुत सारा रेड ब्लड सेल्स होता है, ठीक है। अब रेड ब्लड सेल्स क्या काम करता है? द रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन। अब ब्लड में ऑक्सीजन होता है ना। अब ब्लड में भी बहुत अलग अलग टाइप्स होते हैं, है ना। यहाँ अपन ने देखे थे 2 पार्ट्स, है ना। ब्लड इज अ थिक फ्लूइड, इट हैज 2 पार्ट्स, प्लाज्मा एंड कॉर्प्यूसल। और ब्लड में क्या है? बिलियंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स, मतलब ब्लड में रेड ब्लड सेल्स बहुत ही हाई मात्रा में पाया जाता है। अब रेड ब्लड सेल्स का क्या काम है? रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन। रेड ब्लड सेल्स हमेशा ऑक्सीजन सप्लाई करता है बॉडी में। इट हैज़ अ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन विच ऑब्जर्व्स ऑक्सीजन। अब रेड ब्लड सेल्स में एक रेड पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, और वो अपने ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करता है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को एब्जॉर्व करता है ना। अपने ब्लड में ऑक्सीजन रहता है ना, तो वो हीमोग्लोबिन ऑब्जर्व करता है ऑक्सीजन को। क्लियर? नाउ वाइट ब्लड सेल्स इंजेस्ट एंड डिस्ट्रॉयज द जर्म्स। नाउ वाइट ब्लड सेल्स क्या करता है? जर्म्स को डिस्ट्रॉय करता है। अपने बॉडी में जर्म्स आते हैं ना, हम बाहर का खाना खाते हैं, चाट खाते हैं, व्हीकल्स का खाते हैं, है ना, चॉकलेट्स खाते हैं, जिससे अपने बॉडी में जर्म्स आ जाते हैं। तो वो जर्म्स को कौन मारता है, कौन डिस्ट्रॉय करता है? वाइट ब्लड सेल। क्लियर? There is 1 white blood cell for every 6 or 700 red blood cells. मतलब 6 और 700 रेड ब्लड सेल्स में एक वाइट ब्लड सेल्स होता ही है, ठीक है। समझ में आया? 6 और 700 रेड ब्लड सेल में एक वाइट ब्लड सेल होता ही है। Now blood platelets are much smaller than red blood cells. Now blood प्लेटलेट्स क्या है? बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है रेड ब्लड सेल से अगर कंपेयर करें तो। When a blood vessel is cut, blood platelets collects at the site of the
injury and form a clot along with white blood cells and plasma. The clot stops the flow of blood. Thus it saves the loss of blood. Now when you got the injury, अगर आपको इंजरी हुई मीन्स आपको चोट लगी है, तो क्या होता है, ब्लड निकल आता है ना, और बहुत सारा ब्लड फ्लो भी हो जाता है. सो इफ़ यू गॉट द इंजरी देन फॉर्म अ क्लॉट. मतलब क्लॉट एक ऐसा चीज़ है जो एक जगह पे फॉर्म हो जाता है अलॉन्ग विथ वाइट ब्लड. वाइट ब्लड के साथ वो एक जगह फॉर्म हो जाता है, ठीक है. एंड इट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ ब्लड. मतलब वो ब्लड को फ्लो होने में, मतलब वेस्टेज ऑफ ब्लड, जो ब्लड वेस्ट हो रहा है, आपका बह रहा है, उसको स्टॉप करने में हेल्प करता है. इट सेव्स द लॉस ऑफ ब्लड. मतलब ब्लड का लॉस होने से वो सेव करता है. कौन? क्लॉट. Heart is the center and controller of the blood vessel. Our heart is located in the chest cavity, slides towards the left. The size of a person's heart is roughly. Now, heart is the center and controller of the blood vessel. आप सबको पता है हार्ट क्या है? सेंटर है किसका? जो ब्लड वेसल है उसको, और पूरे ब्लड वेसल्स को कंट्रोल करता है. कौन? अपना हार्ट. क्लियर? आवर हार्ट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी, स्लाइड्स टूवर्ड्स द लेफ्ट. अपने बॉडी के लेफ्ट हैंड साइड पे अपना हार्ट होता है. ये आपको पता है? नहीं? तो आपके बॉडी के चेस्ट के लेफ्ट हैंड साइड पे आपका हार्ट होता है, जिस पे आप अपना हाथ रख के पंपिंग यानी हार्ट बीट्स को फील कर सकते हो. ठीक है. The size of a person's heart is roughly, now turn the page, roughly the size of his fist. The heart is a muscular organ. It has 4 chambers in all. The blood which absorbs oxygen from the lungs comes to the left chambers. It is then supplied to all the organs of the body through arteries. Now, हार्ट क्या है? एक मस्क्यूलर ऑर्गन है जिसका 4 चेम्बर्स होते हैं. 4 चेम्बर्स मतलब 4 टाइप के एक चेम्बर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें जो ब्लड है ना वो क्या करता है? ऑक्सीजन ऑब्जर्व करता है. और कहाँ से ऑब्जर्व करता है? लंग्स से. कम्स टू द लेफ्ट चेम्बर्स. लंग्स से हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है. फिर वो कहाँ सप्लाई होता है? इट्स सप्लाई टू ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी थ्रू आर्टरीज. मतलब वो पूरा ब्लड पूरे ऑर्गन्स में सप्लाई होता है. किसके थ्रू से? आर्टरीज के थ्रू से. द ब्लड आफ्टर गिविंग ऑक्सीजन टू द ऑर्गन कम्स बैक टू द राइट चेम्बर्स ऑफ द हार्ट. मतलब पूरी बॉडी के ऑर्गन्स में ब्लड सर्वाइव होने के बाद वो कहाँ आता है? वापस से आता है अपने राइट के चेम्बर में, राइट साइड ऑफ द चेम्बर ऑफ द हार्ट. मतलब राइट साइड में जो चेम्बर्स है ना वहाँ पर वापस आ जाता है. क्या आ जाता है? ब्लड. पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई होने के बाद वो वापस हार्ट में आ जाता है राइट साइड के. इट इज़ अगेन सेट टू द लंग्स टू टेक ऑक्सीजन. फिर से ब्लड को कहाँ भेजा जाता है? लंग्स में. क्यों भेजा जाता है? टू टेक ऑक्सीजन. मतलब ऑक्सीजन टाइम टू टाइम सप्लाई होने के लिए उसको लंग से फिर हार्ट, हार्ट से फिर लंग्स से पूरे बॉडी ऑर्गन्स को, मतलब बॉडी पार्ट्स को. थस द मेन फंक्शन ऑफ द हार्ट इज टू पंप द ब्लड टू एंड फ्रो ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. मतलब इसका क्या फंक्शन है? द मेन फंक्शन ऑफ द हार्ट का फंक्शन है कि हार्ट से पूरे बॉडी तक क्या सप्लाई करना है? ब्लड सप्लाई करना है टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ठीक है. Now here we end our today's lesson. The remaining lesson I will teach you in the next video. It's the time to take leave. I'll see you in the next video. Okay. Bye bye.